السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستوں، فن منطق کی مشہور و معروف کتاب جواہر المنطق کا سبق نمبر 9 ہم پڑھتے ہیں۔ اس سے قبل جو سبق گزرا ہے اس کے اندر بات یہ چل رہی تھی کہ مفرد کا ایک معنی ہونے کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ لفظ مفرد ہو اور اس مفرد لفظ کا معنی بھی ایک ہو، تو ایسی صورت میں اس کی 3 قسمیں تھیں۔ لفظ مفرد ہو اور وہ معنی اس کا معنی بھی ایک ہو، تو وہ معنی متعین اور مشخص ہوگا تو علم ہے، جیسے کہ دجلہ، گنگا، تاج محل وغیرہ۔ لفظ مفرد ہو اور اس کا معنی ایک ہو، لیکن وہ معنی اپنے افراد پر یا تو برابر صادق آئے گا یا اپنے افراد پر برابر صادق نہیں آئے گا۔ اگر لفظ تو مفرد ہے لیکن اس کا معنی اپنے افراد پر برابر صادق آتا ہے تو اس کو متواتی کہتے ہیں، جیسے کہ لفظ حیوان ناطق۔ یہ دنیا کے ہر انسان پر برابر صادق آتا ہے، یعنی جو بھی انسان ہوگا وہ حیوان ناطق ہوگا۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو انسان تو ہو لیکن حیوان ناطق نہ ہو۔ تو حیوان ناطق انسان کے تمامی افراد پر برابر صادق آتا ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، ہر ایک پر لفظ حیوان ناطق برابر صادق آتا ہے۔ اور متواتی کا معنی ہی ہوتا ہے تباتو، یعنی برابر ہونا۔ اور اگر لفظ تو مفرد ہو اور اس کا معنی بھی ایک ہو لیکن وہ معنی اپنے افراد پر برابر صادق نہ آئے، بلکہ کسی پر کم، کسی پر زیادہ، کسی پر اور کم، کسی پر اور زیادہ، تو ایسی صورت میں اس کو مشکک کہتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے ابیض ہے۔ ابیض کا معنی ہوتا ہے سفید۔ اب سفیدی کسی کے اندر زیادہ ہے، کسی کے اندر کم ہے، کسی کے اندر اور کم ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے آپ نے اس کو پڑھا تھا کہ ابیض کا صدق جو ہے دودھ پر، تو دودھ پر جو ہے ابیض کا صدق یعنی دودھ کچھ زیادہ سفید ہوتا ہے، اور وہی ہڈی بھی سفید ہوتی ہے، لیکن ہڈی کی سفیدی دودھ کی سفیدی کے مقابل میں تھوڑی کم ہوتی ہے۔ سفید یہ بھی ہے، سفید یہ بھی ہے، سفید دونوں کو کہیں گے، لیکن دودھ کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور ہڈی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے طویل کا معنی ہوتا ہے لمبا۔ تو تاڑ کا جو درخت ہوتا ہے اس کے اندر لمبائی زیادہ ہوتی ہے، اور کھجور کے درخت میں جو لمبائی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ تو طویل اسے بھی کہتے، طویل اسے بھی کہتے، لیکن یہ اپنے افراد پر برابر صادق نہیں آ رہا ہے، بلکہ کسی پر کم، کسی پر زیادہ۔ پیارے دوستو، آج کا جو سبق ہے، آج کا بیان جو ہے، یہ سبق بھی مفرد کی قسموں کا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ پیچھے کا جو سبق تھا اس میں یہ تھا کہ لفظ بھی مفرد ہو اور اس کا معنی بھی ایک ہو، لیکن آج کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ لفظ تو مفرد ہوگا لیکن اس کا معنی مفرد نہیں ہوگا۔ لفظ مفرد ہوگا لیکن اس کا معنی مفرد نہیں ہوگا، بلکہ اس کے کئی معنی ہوں گے۔ جیسے اس کی ایک مثال میں دے رہا ہوں، جیسے لفظ ہار۔ لفظ ہار کے 2 معنی ہیں، ایک شکست، ایک وہ شکست جو جیت کے مقابل میں ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، 2 ٹیموں نے میچ کھیلا، 2 ٹیموں نے کرکٹ کھیلا، تو فلاں ٹیم سے ہار گئی۔ تو ایک ہار تو وہ جو جیت کے مقابل میں ہوتا ہے، اور ایک ہار وہ جو گلے میں پہنا جاتا ہے۔ تو لفظ ایک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے معنی 2 ہیں۔ اور اسی طریقے سے لفظ پھل، اس کے بھی 2 معنی ہیں، ایک تو وہ جو کھایا جاتا ہے، دوسرے وہ جو چاقو اور تیر میں لگایا جاتا ہے، یعنی جو چاقو کا لوہا ہوتا ہے نا جس سے کاٹا جاتا ہے سبزی وغیرہ، وہ۔ اب فرماتے یہ ہیں کہ لفظ مفرد ہو، اس کے معانی کئی ہوں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ایک ہی لفظ کے کئی معنی آ رہے ہیں، کئی معنی جو آ رہے ہیں، یہ معنی
یہ لفظ جو ہے ان ہر معنی کے لیے الگ الگ طور پر وضع کیا گیا ہے، یا ایسا تھا کہ پہلے جو ہے یہ لفظ کسی ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا، پھر کسی نقل کرنے والے نے اس کو پہلے معنی سے نقل کر کے دوسرے معنی کی طرف نقل کر دیا ہو، پھر کسی دوسرے نے دوسرے معنی سے تیسرے معنی کی طرف نقل کر دیا ہو۔ اس طریقے سے ایک لفظ کے کئی معنی ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ لفظ ایک تو ہے لیکن اس کے معنی کئی ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ لفظ ایک تھا اور اس کا معنی بھی ایک تھا، اس کا معنی بھی ایک تھا، لیکن نقل کرنے والوں نے پہلے معنی سے اس کو دوسرے معنی کی طرف نقل کیا، پھر دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے۔ تو ایک طریقے سے یہ بھی ہوتا ہے، کئی معنی پر دلالت ہو جاتی ہے۔ یا پھر ایسا تھا کہ جس طریقے سے یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اسی طریقے سے دوسرے کے لیے وضع کیا گیا ہے، اسی طریقے سے تیسرے کے لیے وضع کیا گیا ہے، اسی طریقے سے چوتھے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ کسی نے نقل نہیں کیا ہے، بلکہ وہ لفظ اس کے لیے بھی ہے، اس کے لیے بھی ہے، اس کے بھی لیے، اس کے بھی، ایک ساتھ سب پر دلالت کر رہا ہے، اس کو کسی ناقل نے نقل نہیں کیا ہے۔ تو اگر لفظ ایک ہے اور اس کے معنی کئی ہیں، اور اس لفظ کو ہر ایک معنی کے لیے الگ الگ وضع کیا گیا ہو، کسی ناقل کی نقل کرنے سے نہ ہو، وہ لفظ ہر ایک معنی کے لیے مستقل ہو، تو اس کو بولتے ہیں مشترک۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ مشترک بولتے ہیں۔ اور اگر لفظ تو ایک ہے اور اس کے معنی کئی ہیں، لیکن وہ معنی اس طریقے سے ہے کہ یہ لفظ پہلے تو کسی ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا، پھر نقل کرنے والوں نے اس کو پہلے معنی سے دوسرے معنی کی طرف نقل کیا، پھر دوسرے ناقل نے دوسرے سے تیسرے معنی کی طرف نقل کیا، پھر دوسرے نے تیسرے سے چوتھے، تیسرے سے چوتھے والے نے پانچویں کی طرف نقل کیا۔ اس طریقے سے ہوا، بلکہ اس طریقے سے نہ ہوا ہو کہ ایک لفظ جو ہے ایک ساتھ چاروں معنی کے لیے ہو۔ اگر لفظ کا معنی اس طریقے سے ہو، یعنی لفظ ایک ہے اور اس کے معنی کئی ہیں، وہ اس طریقے سے ہو کہ ناقل کی نقل کرنے سے ہو، تو اس کو بولتے ہیں منقول۔ کیا بولتے ہیں بچوں؟ منقول۔ اگر نقل کرنے والے نے نقل نہ کیا ہو، اگر لفظ کا معنی الگ الگ، لفظ ایک ہے اور اس کے معنی الگ الگ وضع کیے گئے ہوں مستقل طور پر، تو اس کو بولتے ہیں مشترک۔ اور اگر لفظ ایک ہے اور اس کے معنی کئی ہیں، لیکن پہلے تو کسی اور معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا، پھر دوسرے معنی کے لیے وضع کیا گیا، تیسرے معنی کے لیے مقابل میں وضع کیا گیا، تو اس کو بولتے ہیں منقول۔ اب منقول بھی تین طریقے سے ہوتی ہیں۔ بچوں اپنے ذہن کو بالکل حاضر رکھ کر ہماری بات کو سماعت فرمائیں، اور انشاءاللہ الرحمن اس کے بعد میں کتاب پڑھا دیتا ہوں اور آپ حضرات جو ہے کتاب کو سمجھ لیجئے گا۔ منقول بھی تین طریقے سے ہیں۔ منقول یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور ہر منقول کے لیے ناقل کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی چیز اس وقت تک نقل نہیں ہوگی ایک جگہ سے دوسری چیز کی طرف جب تک کوئی نقل کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو فن منطق کے اندر نقل کرنے والے تین طریقے سے ہوتے ہیں۔ اگر پہلے معنی سے دوسرے معنی کی طرف نقل کرنے والے ایسے لوگ ہوں کہ جن کا تعلق اہل شرع سے ہو، شرع سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جو لوگ اصول شرع اور شریعت کے اصول اور قوانین کو بنانے والے ہوتے ہیں، اگر ایسے لوگوں میں سے ان کا تعلق ہے، ایسے لوگوں سے ان کا تعلق ہے، تو اس کو بولتے ہیں منقول شرعی۔ ہم نے کیا کہا؟ نقل کرنے والے بھی تین طریقے سے ہوتے ہیں۔ اگر وہ نقل کرنے والے جو ہے ارباب شرع سے ہوں، یعنی ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو لوگ شریعت کے قواعد و قوانین کو بناتے ہیں، اصول اور گرامر کو بناتے ہیں، اگر ان سے ان کا تعلق ہو تو اس کو بولتے ہیں منقول شرعی۔ اس کو کیا بولتے ہیں بچوں؟ منقول شرعی۔ اور اگر ناقل یعنی نقل کرنے والے ارباب شرع سے نہ ہوں، اہل شرع سے نہ ہوں، بلکہ عرفی لوگ ہوں، عام لوگ ہوں، جیسے ہمارے یہاں کے بول چال میں اور ہمارے علاقے سے کم 50 کلومیٹر دوری پر وہاں کے لوگوں کے بول چال میں ایک ہی چیز کا دو نام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ ہمارے زبان میں پانی چلانے کو پانی چلانا کہتے ہیں، نل چلانے کو نل چلانا کہتے ہیں، لیکن ہم جس علاقے میں رہتے ہیں
यहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर दूरी पर पानी को यानी नल चलाने को ढारना बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मतलब तो दोनों का एक ही है, मतलब दोनों का एक ही है। एक तरफ है कि ढारना और एक है पानी चलाना। नल को चलाएंगे तो पानी ही निकलेगा, लेकिन लफ्ज एक है, यानी मतलब एक है और उसके मानी अलग अलग है। मतलब क्या है, उसके जो है कहने का तरीके अलग अलग हैं। इसी तरीके से हम एक ही चीज को ये कह रहे हैं, वो उस चीज को वो दूसरा नाम दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ चारपाई, चारपाई उसको कहते हैं जो रस्सी से बनाई जाती है, उसके चारों तरफ चौखट और चौखटबाजी होती है और उसको बीना जाता है, उसको चारपाई कहते हैं। लेकिन हमारे घर से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर बहुत से लोग चारपाई तखत को भी कहते हैं। ठीक है, तो लफ्ज एक है, लेकिन यहाँ चारपाई उस चीज को कहा जाता है जो रस्सी से बनाई जाती है, और उसको जो है वहां पर चारपाई उसको कहते हैं जो है तखत वगैरह होती है। तो कहने का मतलब यह है कि लफ्ज एक है, उसके मानी कई हैं, और ये उर्फ लोगों ने उसका नाम दिया है, यानी आम लोगों ने उसका नाम दिया है। ना उनका ताल्लुक अहले शरा से है और ना उनका ताल्लुक किसी उलमा की जमात से है, बल्कि आम लोगों ने उसका नाम रख दिया है। ये चारपाई है और ये तखत है, ये कुर्सी है और ये जो मेज़ है और ये जो है टेबल है, ये पंखा है। तो ये जो नाम रखा गया है और इधर से उधर नकल किया गया है, इसको किसने किया है? ये आम लोगों ने किया है। तो अगर नकल करने वाले आम लोगों की जमात से हों तो उनको क्या बोलते हैं? मनकूले उर्फी कहते हैं। और अगर दोस्तों नकल करने वाले ना तो अहले शरा से हों, ना तो आम लोगों में से हों, बल्कि उलमा की एक जमात हो, अब वो उलमा चाहे उलमाए नहव हों, चाहे उलमाए मंतिक हों, चाहे उलमाए सर्फ हों, अगर उन लोगों ने नकल किया है, पहले एक माने में था वो लफ्ज़, पहले किसी और माने में था, बाद में उलमा की जमात ने उस माने से उसको उठाकर दूसरे माने में इसको क्या मुंतकिल कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको मनकूल इस्तिलाही कहते हैं। क्या कहते हैं? मनकूल इस्तिलाही। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक में मैंने क्या बयान किया कि कभी कभी ऐसा होता है कि लफ्ज़ तो एक होता है लेकिन उसके मानी कई होते हैं। अब हमें देखना ये है कि लफ्ज़ एक है और उसके मानी कई हैं, तो अब हमें ये गौर करना है कि ये लफ्ज़ हर एक मानी के लिए मुस्तकिलन अलग अलग वज़ा किया गया है, या किसी नाकिल ने पहले तो ये लफ्ज़ किसी एक माने के लिए वज़ा किया गया था, किसी नाकिल ने आकर इस पहले वाले माने से इसको हटाकर दूसरे माने में नकल कर दिया हो। तो अगर लफ्ज़ हर एक मानी के लिए अलग अलग वज़ा किया गया हो, किसी नाकिल ने पहले माने से दूसरे माने की तरफ मुंतकिल ना किया हो, तो उसको बोलते हैं मुश्तरक। और अगर लफ्ज़ एक है और उसके मानी कई हैं और वो लफ्ज़ पहले एक माने के लिए वज़ा किया गया था, फिर दूसरे नाकिल ने उसको दूसरे माने की तरफ नकल कर दिया है, तो उसको बोलते हैं मनकूल। फिर हमने कहा मनकूल की तीन हैसियतें हैं, मनकूल तीन तरीके से हैं। मनकूल जिस तरीके से नाकिल होगा उस तरीके से मनकूल भी होंगे। अगर नाकिल की जमात, अगर नाकिल का ताल्लुक जो है, अगर नाकिल का ताल्लुक जो है अहले शरा में से हो, अरबाब शरा में से हो, तो उस मनकूल को मनकूल शरई कहते हैं। और अगर नाकिल का ताल्लुक आम लोगों में से हो तो उसको मनकूल उर्फी कहते हैं। और अगर नाकिल का ताल्लुक जो है अहले इस्तिलाह से हो, अहले जो है इल्म से हो, यानी उलमा की जमात से हो, तो उसको मनकूल इस्तिलाही कहते हैं। ठीक है, अब हमने एक बात और कही थी बच्चों कि लफ्ज़ एक हो और उसके मानी कई हों। तो अब हमें यह देखना है कि हमने तो बताया ना, लफ्ज़ एक हो उसके मानी कई हो, तो वो माना वो लफ्ज़ हर एक माने के लिए अलग अलग वज़ा किया गया हो तो वो मुश्तरक है। और अगर वो लफ्ज़ हर एक माने के लिए अलग अलग वज़ा नहीं किया गया हो, बल्कि पहले किसी एक माने के लिए वज़ा किया गया था, नाकिल ने पहले माने से दूसरे माने की तरफ उसको मुंतकिल कर दिया है, तो अब हमें यहाँ ये देखना है कि ये लफ्ज़ जो है पहले एक माने के लिए वज़ा किया गया था, फिर नाकिल ने पहले माने से दूसरे माने की तरफ इसको नकल कर दिया है। तो हमें यहाँ गौर करना है कि इस लफ्ज़ को पहले ये लफ्ज़ जो है पहले एक माने के लिए वज़ा किया गया था, फिर नाकिल ने इसको इस माने से निकालकर दूसरे माने की तरफ मुंतकिल कर दिया हो। तो अब हमें देखना यह है कि इस लफ्ज़ ने पहले माने को छोड़ दिया है या पहले माने में भी इस्तेमाल होता है। यानी जब इस
नाकिल ने इसको पहले माने से दूसरे माने की तरफ मुंतकिल किया, तो ये लफ्ज़ पहले माने को छोड़ दिया हो या पहले माने को नहीं छोड़ा हो, जो है और दूसरे माने में भी इस्तेमाल होता हो। अगर पहले माने को छोड़ दिया हो और वो दूसरे माने में इस्तेमाल होने लगा हो तो इसको तो मनकूल कहेंगे। लेकिन अगर वो पहले माने में भी इस्तेमाल होता हो और दूसरे माने में भी इस्तेमाल होता हो तो इसको हकीकत कहते हैं। अगर पहले माने में इस्तेमाल होगा तो हकीकत, और दूसरे माने में इस्तेमाल होगा तो उसको मजाज कहते हैं। जैसे हर एक की मैं मिसाल अभी आपको देता हूं, तो आप इतना याद रखिएगा कि लफ्ज़ जो है वो लफ्ज़ जो पहले एक माने के लिए वज़ा किया गया था, फिर नाकिल ने उसको पहले माने से दूसरे माने की तरफ नकल कर दिया है। तो अब ये देखना है कि ये इस लफ्ज़ ने पहले माने को बिल्कुल छोड़ ही दिया है या उसको नहीं छोड़ा है। अगर पहले माने को बिल्कुल छोड़ दिया हो और दूसरे माने में इस्तेमाल होने लगा हो तो इसको मनकूल है, इसको मनकूल कहेंगे। और अगर पहले माने को भी ना छोड़ा हो और दूसरे माने में भी इस्तेमाल होता हो, यानी नाकिल ने तो पहले माने से उसको निकाल दूसरे माने में इस्तेमाल कर दिया, तो अगर पहले माने में भी इस्तेमाल होता हो तो उसको क्या बोलते, पहले माने में भी इस्तेमाल होता हो और दूसरे माने में भी मशहूर हो गया हो, तो अब इसी सूरत में उसको क्या बोलते हैं, हकीकत कहते हैं। लेकिन फर्क ये है, पहले माने में यानी हकीकी माने में इस्तेमाल हो, पहले माने में इस्तेमाल हो तो उसको हकीकत, और दूसरे माने में इस्तेमाल हो तो उसको मजाज कहते हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको मैंने सारी बात समझा दी है, अब आपको उसी मुताबिक आपको किताब को देखना है और किताब से समझना है बातों को। ठीक है, चलिए देखते हैं। फरमाते हैं फिर मुफरद के लिए मुतअद्दिद माना होने के एतबार से 4 किस्में हैं। फिर मुफरद के लिए मुतअद्दिद माना होने के एतबार से 4 किस्में हैं, मुश्तरक, मनकूल, हकीकत, मजाज। मुश्तरक किसे कहते हैं, कह मुश्तरक वो मुफरद है जिसके चंद माने हों, जिसके चंद माने, लफ्ज़ तो मुफरद है लेकिन उसके माने चंद हों। वो मुफरद जिसके चंद माने हो और उसके आपस में कोई मुनासबत न हो। यानी मुनासबत मतलब यानी एक वो लफ्ज़ तो एक है, अब उस लफ्ज़ के कई माने हैं, तो उन मानों में आपस में कोई मुनासिबत ना हो। ये नहीं हो कि हाँ ये इससे इसकी मुनासिबत थी, इससे मिलता जुलता था, इस वजह से इसका माना ये हो गया, इसका माना ये हो गया, ऐसा ना हो। और उसके आपस में कोई मुनासिबत ना हो। जैसे कि सोना जो एक कीमती धातु को भी कहते हैं। अब सोना का लफ्ज़ है, अब एक कीमती धातु जेवर को भी कहते हैं सोना, और नींद को भी सोना कहते हैं। तो ये बताओ, जेवर और नींद सोना एक लफ्ज़ है। अब सोना के दो माने हैं, एक तो सोना जेवर को भी कहते हैं जो जेवरात जो पहने जाते हैं धातु, और एक सोना नींद को भी कहते हैं, है ना। तो एक लफ्ज़ के 2 माने हुए कि नहीं हुई है। और ये बताइए, सोना जो नींद वाला है और एक सोना जो जेवर है, इसमें आपस में कोई मुनासिबत है, इन दोनों में कोई मिलावट है, यानी आपस में कोई इसका ताल्लुक़ है? बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं है। बल्कि सोना का लफ्ज़ जिस तरीके से नींद के लिए बोला जाता है, इसी तरीके से जेवर के लिए भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग मुस्तकिल भी हो गए। ऐसा नहीं था कि लफ्ज़ सोना पहले नींद के लिए वज़ा किया था, फिर नाकिल ने इसको जेवर के लिए मुंतकिल कर दिया। आज भी सोना नींद को भी कहते हैं और जेवर को भी कहते हैं। कि जैसे लफ्ज़ सोना जो एक कीमती धातु है और नींद को कहते हैं, कह रहे अरबी में इसकी मिसाल लफ्ज़ ऐन है। अब लफ्ज़ ऐन ही को ले लीजिए, लफ्ज़ ऐन ये मुफरद लफ्ज़ है, अब इसके चंद मानी हैं। ऐसा नहीं है कि लफ्ज़ ऐन पहले एक माने के लिए वज़ा किया गया था, फिर नाकिल ने दूसरे माने के लिए, फिर तीसरे माने, ऐसा नहीं। बल्कि जिस तरीके से लफ्ज़ ऐन एक माने के लिए होता है, उसी तरीके से दूसरे माने के लिए भी। जैसे लफ्ज़ ऐन है कि जिसके माना है ज़ात। अब एक है लफ्ज़, एक माना हुआ ज़ात। लफ्ज़ ऐन का दूसरा माना है आँख। लफ्ज़ ऐन का तीसरा माना है चश्मा। ठीक है, तो इसी तरीके से हाँ, तो 3 मानी हो गए लफ्ज़ ऐन के, बिल्कुल 3 मानी हो गए, एक ज़ात, एक आँख, एक चश्मा। ठीक है, अब लफ्ज़ ऐन जितना जैसे आँख के लिए वज़ा किया गया था, ऐसे ही चश्मा के लिए भी वज़ा किया गया, ऐसे ज़ात के लिए वज़ा किया गया। ऐसा नहीं है कि लफ्ज़ ऐन पहले ज़ात के लिए वज़ा किया गया था, फिर नाकिल ने इसको ज़ात के माने से लाकर आँख के लिए नकल कर दिया हो, बल्कि नहीं, हर एक मानी के लिए अलग अलग मुस्तकिल तौर पर लफ्ज़ ऐन वज़ा किया गया है। लफ्ज़ ऐन जिसके माना ज़ात, आँख, चश्मा, सोता, सोना, धात है, सूरज हैं। ठीक है, फ़ारसी में इसकी मिसाल जैसे लफ्ज़ जहान, लफ्ज़ एक है लफ्ज़ जहान, लेकिन इसके मानी देखिए, लफ्ज़ जहान है जिसके माना आलम है और कूदने वाला। जहान का एक माना आलम और एक माना क्या है, कूदने वाला है। अब ये जहान का लफ्ज़ आलम के लिए भी है और कूदने वाले के लिए। ऐसा नहीं कि पहले जहान के आलम के लिए वज़ा किया गया है, फिर उसको नाकिल ने कूदने वाले के लिए ऐसा वज़ा किया गया हो, वज़ा कर दिया हो। और ऐसे ही जैसे कि हार। अब हार जिस तरीके से फूल को, एक हार तो जीत के मुकाबिल में होता है, ठीक है, और एक हार जो गले में पहना जाता है। इसी तरीके से फूल, ठीक है, एक फूल तो उसको कहते हैं
جو سونگھا جاتا ہے، اور ایک پھول وہ جو دھات کی ایک قسم ہوتی ہے نا. اسی طریقے سے پھل، ایک پھل جو کھایا جاتا ہے اور دوسرا وہ پھل جو چاقو کا ہوتا ہے، جو لوہے کا، جس سے سبزی وغیرہ کاٹتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، یہ تو بات تھی مشترک کی. میں نے کہا تھا کہ نا لفظ ایک ہو، اس کے معنی کئی ہوں، اور وہ لفظ ہر ایک معنی کے لیے الگ الگ وضع کیا گیا تو اس کو مشترک کہتے ہیں. اب منقول کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا تھا منقول اسے کہیں گے کہ لفظ تو ایک ہو، اس کے معنی کئی ہوں، اور وہ معنی اس طریقے سے ہو کہ وہ لفظ پہلے ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا، پھر ناقل نے اس کو پہلے معنی سے دوسرے معنی کی طرف نقل کر دیا ہو، تو اس کو منقول کہتے تھے. اب دیکھیے، منقول وہ مفرد ہے جو پہلے ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا، پھر مناسبت کی وجہ سے، تو وہ ظاہر سی بات ہے ایک معنی سے جب دوسرے معنی کی طرف ہم اس کو نقل کریں گے تو پہلے معنی اور دوسرے معنی میں کچھ نہ کچھ مناسبت ہونا ضروری ہے. مناسبت مطلب کچھ نہ کچھ ملتے جلتے ہونے چاہیے، ویسے نہیں ایک معنی کو دوسرے معنی کی طرف ہم منتقل کر دیں گے. منقول وہ مفرد ہے جو پہلے ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، پھر مناسبت کی وجہ سے دوسرے معنی میں استعمال ہو کر مشہور ہو گیا ہو. یعنی پہلے معنی کو بالکل چھوڑ ہی دیا ہو اور دوسرے میں مشہور ہو گیا ہو، اور پہلا معنی چھوڑ دیا گیا جیسے کہ لفظ اسم. اب لفظ اسم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ لفظ اسم کا معنی ہوتا ہے علامت اور بلندی، لیکن نحو کی جماعت نے اس کو کیا کر دیا کہ اس کو بلندی اور علامت کے معنی سے نکال کر اس کو ایک اصطلاح بنا دیا، اور کہا کہ اسم وہ کلمہ ہے جو ہے کسی معنی پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت نہ کرے. ٹھیک ہے، کسی زمانے پر دلالت نہ کرے. تو لفظ اسم کا لغوی معنی تو بلندی اور علامت کے ہوتے ہیں، لیکن اس کو اہل جو ہے علماء نحو کی جماعت نے اس کو ایک مخصوص اصطلاح کا نام دے دیا. تو پہلے معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں نقل کی طرف نقل کیا کہ نہیں کیا. اب پھر بتا رہے ہیں منقول کی 3 قسمیں ہیں. میں نے بتایا تھا نا کہ منقول ناقل کی حیثیت سے منقول کی 3 قسمیں ہیں، یعنی نقل کرنے والے اگر شرع کی جماعت سے ہیں تو منقول شرعی، نقل کرنے والے اگر عرف عام میں سے ہیں تو منقول عرفی، نقل کرنے والے اگر جو ہے اہل اصطلاح سے ہے تو ان کا نام منقول اصطلاحی ہو جائے گا. پھر منقول شرعی وہ لفظ ہے جس کو ارباب شرع نے پہلے معنی سے دوسرے معنی کی طرف نقل کیا. ارباب شرع نے یعنی جو لوگ شریعت کا جن لوگوں نے شریعت میں قوانین اور قواعد کے ضابطے کو پیدا کیا، جن لوگوں نے جو ہے اصول و ضوابط بنائے شریعت کے اندر، تو ان کو اہل شرع اور ارباب شرع کہتے ہیں. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. منقول شرعی وہ لفظ ہے جس کو ارباب شرع نے پہلے معنی سے دوسرے معنی کی طرف نقل کیا. جیسے لفظ لفظ مسجد دیکھیے، پہلے اس کا لفظ مسجد کا جو معنی ہے لغوی، اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں پر سجدے کی جاتی ہیں، ہر وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جائے وہ اس کو مسجد کہتے ہیں. لیکن اہل شرع نے مسجد کا لفظ خاص کر دیا اس گھر کے لیے کہ جس میں 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے. ہر جگہ کو مسجد نہیں کہا جاتا آج کے زمانے میں، کیونکہ جہاں نماز پڑھتے اس کو مسجد کہتے ہیں، نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر سجدے کی جگہ کو مسجد کہتے ہیں. یہ حقیقی معنی، اس کا لغوی معنی ہے. لیکن عرف اہل شرع نے مسجد کا لفظ اس جگہ کے لیے خاص کر دیا ہے کہ جہاں پر چند مسلمان اکٹھا ہو کر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں. تو پہلے معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں مشہور ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آج کوئی بھی شخص اس جگہ کو مسجد کہتا ہے جہاں ہر انسان سجدہ کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ ہر شخص مسجد اسی کو کہتا ہے جہاں پر 5 وقتہ نماز باجماعت اذان کے ساتھ ادا کی جاتی ہے. اسی طریقے سے لفظ صلاۃ کا معنی ہوتا ہے دعا. اس کا لفظ صلاۃ یہ دعا کے لیے وضع کیا گیا تھا. پھر اس کو اہل شرع نے ایک مخصوص رکن کے لیے مخصوص رکن کا نام دے دیا، جو مخصوص طور پر جس کو مخصوص عبادت کا نام دے دیا، جو مخصوص طور پر جس کو ادا کیا جاتا ہے. اتنا رکعت ہے، اتنی اس طریقے سے ہاتھ باندھنا، اس طریقے سے کھڑا ہونا، اس طریقے سے سجدہ کرنا، اس طریقے سے رکوع کرنا ہے. تو اس مخصوص فعل کو مخصوص وقت میں مخصوص طریقے پر ادا کیا جاتا ہے، اس عبادت کا نام لفظ صلاۃ پڑ گیا. حالانکہ اس کا لفظ صلاۃ کا پہلے کس معنی میں استعمال تھا؟ جو ہے دعا کے معنی میں استعمال تھا، لیکن اس کو دعا کے معنی سے نکال کر کے کس میں استعمال کر دیا؟ نماز کے لیے وضع کر دیا. ٹھیک ہے. لفظ صوم کا معنی بھی ہوتا ہے قول و فعل سے رکنا، بات چیز سے رکنے کا نام. مطلقاً اس کا معنی لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ قول و فعل سے رک جانے کا نام صوم ہے. لیکن اہل شرع نے، شریعت والوں نے، جو لوگ شریعت کا قانون بناتے ہیں، ان لوگوں نے لفظ صوم
उस मखसूस इबादत का नाम रख दिया। लफ्ज़ सौम उस मखसूस इबादत को अब कहने लगे, उस मखसूस इबादत को का नाम दे दिया। लफ्ज़ सौम को उस मखसूस इबादत को जो रमज़ानों में, रमज़ान शरीफ में या फिर और किसी भी हालत दिनों में सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह और रसूल के लिए सच्चे दिल से खाने पीने और जिमा से रुकने को कहा जाता है। यानी लफ्ज़ सौम खाने पीने और जिमा से रुकने का नाम, जिसके अंदर खाना पीना और जिमा करना हराम होता है, उस ऐसी मखसूस इबादत का नाम जो है सौम, ऐसी इबादत को लफ्ज़ सौम का नाम दे दिया। ऐसी इबादत को लफ्ज़ सौम का नाम दे दिया, यानी रोज़ा। निकाह का माना होता है वती करना, जमा करना, आपस में दो लोगों का जमा होना। लेकिन अहले शरा ने निकाह के लफ्ज़ को वती और जो है जमा होने से, उस माने से निकाल करके, बल्कि निकाह का लफ्ज़ एक ऐसी इबादत के लिए वज़ा कर दिया कि जिसके अंदर आक़िदैन के बाहम रज़ामंदी से, शहादतैन की मौजूदगी में जो अक़द किया जाता है, यानी एक दूसरे को इजाब व कबूल के तौर पर कबूल किया जाता है, उस ऐसी इबादत का नाम निकाह पड़ गया। लेकिन निकाह का लुग़वी माना क्या? वती करना। तो क्या कोई जब निकाह पढ़ाता तो उसमें वती होती? नहीं, बल्कि वहाँ से निकाल करके उस माने को, इस लफ्ज़ को इस माने के लिए वज़ा कर दिया, यानी आक़िदैन की रज़ामंदी से दो लोगों का आपस में मिलना। और जो मियाँ बीबी के जो उस इबादत से पहले जो दोनों एक दूसरे के लिए हराम थे, इस चीज़ के ज़रिए से दोनों एक दूसरे के लिए हलाल हो जाते हैं। तलाक का लुग़वी माना होता है छोड़ना, तलाक का। लेकिन अहले शरा ने तलाक को मियाँ बीबी के ऊपर जो एक दूसरे के हुकूक़ होते हैं, उस जो है हुकूक़ से एक दूसरे से जो है समझ लो दूरी इख्तियार करवाना, दूरी बनवाना, और उन दोनों को आपस में एक दूसरे से जुदा करवाने का नाम तलाक पड़ गया। बाद में इसको लोगों ने आपस में जो है एक इबादत का नाम रख दिया तलाक, कि एक जो है आपस में जो मियाँ का, जो शौहर का बीवी पर और बीवी पर जो शौहर का जो हक़ होता, उस हक़ से दोनों को आपस में दूर करवाने का नाम तलाक हो गया। तो ये है मनक़ूल शरई। चाहे लफ्ज़ मस्जिद हो, चाहे लफ्ज़ सलात हो, चाहे सौम हो, चाहे निकाह हो, चाहे तलाक हो, तो ये तमाम के तमाम जो अल्फाज हैं बच्चों, ये सब किसके लिए हैं? ये सब एक अलग माने के लिए वज़ा किए गए थे, लेकिन शरीयत के लोगों ने, अहले शरा के लोगों ने इसको पहले माने से निकाल कर दूसरे माने की तरफ मुंतकिल कर दिया, क्योंकि नकल करने वाले ये शरीयत की जमात से हैं। दूसरी किस्म है मनक़ूल की, मनक़ूल उर्फ़ी। वो लफ्ज़ है जिसको आम लोगों ने पहले माने से दूसरे माने की तरफ नकल किया हो। जैसे लफ्ज़ दाब्बा। लफ्ज़ दाब्बा जो पहले ज़मीन पर रेंकने वाले हर जानवर के लिए वज़ा हुआ था। जो भी ज़मीन पर रेंक रहे थे उन तमाम जानवरों को दाब्बा कहा जाता था। फिर उसके बाद में क्या हुआ? फिर चौपाए के लिए इस्तेमाल होकर उसी माने मशहूर हो गया। ये चार पैर वाले जानवर हैं, अब इन्हीं को खाली दाब्बा कहा जाता है, वरना पहले लफ्ज़ दाब्बा हर ज़मीन पर रेंकने वाले जानवरों को कहते थे, जो ज़मीन पर चलते हैं, चाहे वो पैर वाले हों चाहे बेपैर वाले हों। लेकिन बाद में सिर्फ़ और सिर्फ लफ्ज़ दाब्बा को नाकिलीन ने, यानी आम लोगों ने लफ्ज़ दाब्बा को सिर्फ उन्हीं जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जिसके अंदर चार पैर होते हैं और वो चलते हैं। वही कहा, फिर चौपाई के लिए इस्तेमाल होकर उसी माने में मशहूर हो गया हो, तो इसको क्या बोलते हैं? मनक़ूल शरई बोलते हैं। तीसरी किस्म मनक़ूल की है मनक़ूल इस्तिलाही। कह रहे हैं ये वो लफ्ज़ है कि जिसको किसी ख़ास जमात ने, यानी कि चाहे वो नहू की जमात हो, चाहे सर्फ़ वालों की जमात हो, चाहे मंतिक वालों की जमात हो। मनक़ूल इस्तिलाही वो लफ्ज़ है जिसको किसी ख़ास जमात ने पहले माने से दूसरे माने की तरफ नकल किया। जैसे लफ्ज़ इस्म, अभी हमने बताया था लफ्ज़ इस्म का माना क्या होता है? बुलंदी और अलामत। लेकिन उलमाए नहू ने क्या किया कि इसको एक मखसूस इस्तिलाह का नाम दे दिया, एक मखसूस इस्तिलाह का नाम दे दिया कि इस्म वो कलिमा है जो तीनों मानों में से किसी ज़माने पर दलालत ना करे और किसी माने पर दलालत करे। ठीक है। फ़ेल का माना होता है काम अंजाम देना, अमल करना, लेकिन नहवियों ने फ़ेल उस एक ऐसे कलमे का नाम रख दिया, फ़ेल कह दिया कि फ़ेल एक ऐसा कलमा है जो तीनों ज़मानों में से किसी ज़माने पर दलालत करे और माने पर दलालत करे, तो इसका एक अलग नाम रख दिया। हालांकि इसका पहले माना क्या था? काम और अमल। हर्फ का माना होता था किनारा, लेकिन बाद में नहवियों ने इसको क्या किया कि इसको एक मखसूस कलमे का नाम दे दिया
कि हर्फ वो कलमा है जो माने मुस्तकिल पर दलालत ना करे और तीनों ज़मानों में किसी ज़माने पर बगैर किसी कलमे के मिलाए अपना माना बता ना पाए, उसको हर्फ कहते हैं। तो अलग अलग सबको वज़ा कर दिया। अभी इसको नहवियों ने अलग अलग नाम दे दिया, पहले किसी और के लिए वज़ा किए गए थे, इन लोगों ने इसको दूसरे नाम के लिए से जो है इनको मशहूर कर दिया। मबनी का माना होता है करार पकड़ना, बिना। मोरब का माना होता है ज़ाहिर होना, एराब कर ज़ाहिर करना। लेकिन नहवियों ने इसको एक मखसूस जो है इस्तिलाह का नाम रख दिया इसका, कि मोरब वो कलिमा है या वो इसम है कि जो अपने आखिर में यानी आखिर में जो है एराब को कबूल करे। इसी तरीके से मबनी का माना होता है करार पकड़ना, बाकी रहना, साबित रहना। बाद में इसको क्या है नहवियों ने एक मुस्तकिल इस्तिलाह का नाम दे दिया कि मबनी वो इसम है जो एराब को कबूल ना करे और अपने आमिल के साथ मिला हुआ ना हो। और मुअरब के बारे में बताया कि वो है जो कि एराब को कबूल करे और अपने आमिल के साथ मिला हुआ भी हो। और जैसे लफ्ज़ मुशक्किक का माना होता है शक में डालने वाला, ठीक है। लेकिन मंतिकियों ने इसको क्या किया कि मंतिकियों ने मुशक्किक कहा कि वो लफ्ज़ मुफरद है जो अपने अफराद पर बराबर सादिक ना आए। तो पहले किसी और माने के लिए, बाद में किसी और माने के लिए वज़ा हो गया, इस्तेमाल हो गया। मुतवाती भी इसी तरीके से, मुतवाती का माना होता है बराबर, लेकिन इसको नहवियों ने क्या, मंतिकियों ने क्या किया कि एक मखसूस इस्तिलाह का नाम दे दिया इसे, और कहा कि मुतवाती वो है जो अपने अफराद पर बराबर सादिक आए। तो पहले बहरहाल कहने का मतलब ये है कि मनक़ूल में होता ही ये है कि लफ्ज़ पहले एक किसी और माने के लिए वज़ा हुआ होता है, लेकिन उसको उठाकर नकल करने वाले दूसरे माने के लिए उसको इस्तेमाल करने लगते हैं, और वो लफ्ज़ उसी दूसरे माने में मशहूर हो जाता हो और पहले माने को बिल्कुल भूल ही जाता हो, छोड़ ही देता हो, तो इसी को मनक़ूल कहते हैं, ठीक है। और हमने एक बात कही थी कि लफ्ज़ अगर पहले माने को बिल्कुल छोड़ दिया हो और दूसरे माने में मशहूर हो गया हो तो उसको तो मनक़ूल कहते हैं। लेकिन अगर पहले माने को वो लफ्ज़ जो पहले माने के लिए वज़ा किया गया था, अब नाकिल ने उसको पहले माने से दूसरे माने की तरफ नकल कर दिया, तो अगर पहले माने को छोड़कर दूसरे माने में मशहूर हुआ हो तो उसको तो मनक़ूल कहेंगे। लेकिन अगर पहले माने को छोड़ा ना हो और दूसरे माने में मशहूर भी ना हुआ हो, बल्कि पहले माने में भी इस्तेमाल होता हो, दूसरे माने में भी इस्तेमाल होता हो, तो उसको हकीकत कहते हैं। जैसे कि इसकी मिसाल देते हैं, जैसे कि लफ्ज़ शेर तो ये वैसे तो शेर का लफ्ज़ उस दरिंदे को कहा जाता है जो चीर फाड़ कर खा जाता है, जो जंगलों में होता है, शेर उसी को कहते हैं। लेकिन हम किसी इंसान को भी शेर कह देते हैं उसकी बहादुरी की बुनियाद पर, उसकी ताकत और पावर की बुनियाद पर। तो अब कहो कोई ये कहे कि हम किसी इंसान को शेर कहना शुरू कर दिए, तो अब ऐसा तो होता नहीं है कि हम इंसान को शेर कहने लगे, शेर आया, तो अब लफ्ज़ शेर इसी इंसान के लिए ख़ास हो गया, और वो जंगल में जो शेर जो दहाड़ता है, जो फाड़ता है, चीरता खाता है, उसको शेर कहना हम छोड़ दिए हैं। ऐसा तो होता नहीं है भाई। हकीकत में शेर तो वही है ना, बस इंसान को हम आर्जी तौर पर शेर, मजाजी तौर पर शेर कह रहे हैं ना, क्योंकि इसके अंदर वो ताकत और पावर पाई जाती है, मतलब उस तरीके से दिखता है, इसके अंदर मुनासिबत है कि उस शेर की वजह से, यानी जैसे शेर किसी से नहीं डरता है ऐसे ये भी नहीं डरता है, तो इसके अंदर कुछ मुनासिबत है उस जंगली शेर से, जानवर से, इस वजह से उसको हम शेर कह देते हैं। लेकिन क्या ऐसा है कि हम इस इंसान को शेर कहने लगते हैं तो क्या इसको शेर कहने की बुनियाद पर हम उसको शेर कहना छोड़ देते हैं? नहीं, उसको भी हम शेर कहते हैं और मजाजी तौर पर इसको भी शेर कह देते हैं। वही कहा, अगर लफ्ज़ जो पहले माने के लिए वज़ा किया गया था और उसने वो लफ्ज़ पहले माने में भी इस्तेमाल होता हो, पहले माने को उसने छोड़ा ना हो और दूसरे माने में भी इस्तेमाल होता हो, तो अगर पहले माने में इस्तेमाल हो तो अब जैसे लफ्ज़ शेर से अगर हम वो दरिंदा ले जो जानवर, वो दरिंदा जानवर ले जो जंगलों में रहता है, तो अब उस तौर पर ये शेर अपने हकीकी माने में इस्तेमाल हुआ तो उसको हकीकत कहेंगे। लेकिन अगर शेर से हम बहादुर इंसान मुराद लें, जो इसके अंदर बहादुरी देखकर उसको हम शेर कह देते हैं, ये बेखौफ है, किसी से डरता नहीं, ये चीज़ देखकर कह देते हैं, तो इसको हम शेर तो कहते हैं, शेर है भाई, लेकिन ये क्या हकीकत वो जंगली वाला शेर है? नहीं, बल्कि ये मजाजी तौर पर शेर है। तो अगर पहले माने को छोड़ा भी ना हो और दूसरे माने में मशहूर भी ना हुआ हो, तो अगर पहले माने में इस्तेमाल हो तो हकीकत और दूसरे माने में इस्तेमाल हो तो मजाज कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए
یعنی حقیقت وہ لفظ ہے جو اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال کیا جائے، جیسے لفظ شعر جب اس سے مراد وہ مشہور درندہ جانور ہو۔ مجاز وہ لفظ ہے جو اپنے معنی موضوع لہو کے غیر میں استعمال کیا جائے، جیسے کہ لفظ شعر جب اس سے مراد بہادر انسان ہو۔ ٹھیک ہے، تو بہادر انسان ہم نے مراد لیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مجاز ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔